Good morning, students. Welcome back after a weekends. Today we are here to discuss about a painting that is Krishna on Swing. This painting is also belongs to the Rajasthani miniature paintings. So let us start. First of all, I want to show you the picture of the painting. It's a beautiful vertical painting divided into two parts, upper section and lower section. Okay, so let us start with the description. The upper part. Name of the painting is Krishna on Swing. Artist Nuruddin. School Rajasthan, and the sub school is Bikaner. Medium watercolor on paper. Period 1683 AD, and the size of the painting is very small, that is 20 into 14 centimeter, and the courtesy National Museum of New Delhi. So this is the upper part of this description is very much important. Okay, let us start with the subject matter. What is the subject matter? In this painting, miniature painted by Nuruddin is based on Rasik Priya poetry of Keshav Dasa, the most widely illustrated work of medieval Hindi poetry. Medieval means the period comes between 1100 AD to 1500 AD. Okay, that is a medieval period. So it is the painting taken from Rashik Priya poetry that was illustrated near about 1100 AD to 1500 AD. Okay. One day Krishna takes with him on the swing a gopi other than राधा. जैसा कि आपने राधा और कृष्णा की स्टोरी जानते हैं, प्रभु जी की स्टोरी आप जानते हैं, किस तरीके से ये राधा कृष्ण की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. कृष्णा जी एक गोपी के संग बैठे हैं स्विंग में, और वो राधा नहीं थी, तो इसके बाद क्या हुआ ये अब हम समझेंगे. This behavior of Krishna offends Radha, whose love for Krishna will not tolerate anyone in between. ये जो बिहेवियर, ये जो वाक़या, ये जो किस्सा हुआ कृष्णा ने किया, ये चीज़ राधा जी को पसंद बिल्कुल नहीं आई. वो कृष्णा जी और उनके बीच किसी और थर्ड पर्सन को टॉलरेट नहीं कर सकते थे. Okay, so on this Radha feels betrayed and upset. यहाँ पे वो थोड़ा सा दुखी थी, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी दुखी थी. Let us discuss about the description of the painting. In this painting is divided into two parts. As I told earlier कि दो पार्ट में बने हुए हैं. Okay. The artist seems to have slightly changed the episode. The upper part of the painting related to the first part of the episode, though with some change. Krishna is alone on the swing. He has his eyes fixed on Radha, who is sitting in the porch. तो अपर पार्ट में देखा गया है कृष्णा जी was on a swing and he has his eyes fixed on Radha. उनकी आंखें बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख रही थी किनको? राधा जी को, जो कि पोर्च के नीचे बैठी हुई थी, टेरेस
ऑन टेरेस यानी छत पे पोर्च के नीचे बैठी हुई थी। राधा टू इज लुकिंग एट कृष्णा, राधा जी भी कृष्णा जी को देख रही थी। दस ईगो ऑफ बोथ एंड्स ऑब्स्ट्रक्ट यूनियन एंड ऑफेंड्स बोथ। अब दोनों के अंदर का जो ईगो है वो बीच में आके टकरा रहा था और दोनों को ही ये बात बुरी लग रही थी। इन द लोअर पार्ट कृष्णा इज सिटिंग इनसाइड वन बोवर एंड राधा इनसाइड द अदर। अब मैं आपको थोड़ी देर में इसकी पेंटिंग फिर से दिखाऊंगा, जिसमें आप देखना कृष्णा जी एक झाड़ बोवर के नीचे बैठे हैं, दूसरी तरफ राधा जी भी एक झाड़ के नीचे यानी कि एक छोटा सा बुश टाइप के नीचे बैठी हुई हैं। ही हैज़ the eyes and the faces of both betray grief and pain। दोनों की आँखें थोड़ी सी पछतावा, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसने मुझे धोखा सा दिया, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स दोनों की आंखों में, दर्द भी था। फ्रॉम द एक्शन ऑफ गोपीज हैंड, गोपी के हाथों के एक्शन से पता लगता है, शी अपियर्स टू assert that being a male and the mitre he is expected to have a broader, wider and more liberal mind and a great responsibility towards Radha। अब इसमें आप इस पेंटिंग में देखेंगे दोनों राधा और कृष्णा के बीच में एक गोपी खड़ी हैं और वो कृष्णा को कुछ समझा रही हैं और इससे ये एहसास होता है इसे देखकर कि वो उसे बता रही हैं एज बीइंग अ मेल ही शुड हैव अ ब्रॉडर, वाइडर एंड मोर लिबरल माइंड, जो कि राधा की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को समझे। दिस पेंटिंग इज नियरर टू इंडिजीनियस राजपूत कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए ये पेंटिंग कुछ लगभग राजपूत की इन्फ्लुएंस से भी देखा जा रहा है, इनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, इनके पहनावे को लेकर भी ऐसा माना जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स फोक आर्ट्स एलिमेंट्स, whereas in its fine draughtsmanship, technical execution and use of softer tones of colors, lines are thin and sharp। जैसा कि मैंने आपको बताया इस पेंटिंग की साइज़ बहुत छोटी है, 20 × 14 सेंटीमीटर। इतनी छोटी पेंटिंग के अंदर इतनी सारी चीज़ों को आर्टिस्ट ने बड़ी ही बखूबी से दिखाया है। इसमें ड्रॉटमैनशिप टेक्निक एग्जीक्यूट हुई है, जिसको हम कह सकते हैं कि बारीक काम करने वाला इंसान, जो कि इसको हम ड्रॉटमैनशिप भी कह सकते हैं। ओके और इसमें उन्होंने फाइन कलर्स, फाइन लाइंस, थिन, शार्प, इनसे सभी चीज़ों को बड़े ही खूबसूरती से एक एक चीज़ों पे ध्यान दिया है बनाते वक्त। दिस पेंटिंग इज़ Krishna is wearing a crown and ornaments। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं कृष्णा जी ने क्राउन पहना हुआ है और ऑर्नामेंट्स भी पहना है। एट द बैक ऑफ कृष्णा एंड राधा देयर इज अ राउंड पिलो, वाइट कलर इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स। ओके ये तो रहा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, बहुत ही इजी था, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ जो कि नहीं है इसमें, पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है। अब मैं आपको फिर से पिक्चर दिखाता हूँ पेंटिंग की। देखिए अपर पोर्शन में कृष्णा जी स्विंग में हैं, एक राउंड पिलो है उनके बैक साइड में, वैसे ही राधा जी भी टेरेस के नीचे एक पोर्च के अंदर टेरेस पे बैठी हैं पोर्च के अंदर, इसमें उनके भी बैक साइड एक राउंड पिलो है।
दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, दोनों की अंदर की जो फीलिंग्स को आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर से बनाने की कोशिश की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाने की कोशिश की। लोअर पार्ट में दोनों ही बुशेस के नीचे बैठे हैं, दोनों के पीछे राउंड पिलोज़ हैं, और बीच में जो गोपी हैं वो कृष्णा जी को समझाती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल पेंटिंग। डिस्क्रिप्शन भी इसका बहुत ही इजी था, और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो और भी इजी था। तो इस सब्जेक्ट मैटर में ये बताया गया है कि ये जो पेंटिंग है ये रसिक प्रिया पोइट्री से ली गई है, जो कि केशव दास ने लिखा था। और उस वक्त यानी मिडिवल पीरियड में जो ये हिंदी पोइट्री बहुत बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट की जाती थी लोगों के बीच। तो ये नूरुद्दीन आर्टिस्ट ने इसे सुना और इसे छोटे से पेपर पे यानी कि छोटे से मिनीचर पेंटिंग में उतारा। सो दिस इज़ ओवर। हम एक और पेंटिंग भी आज समझेंगे जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है राजस्थान की। आम तौर पे ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है। इसे कई जगह पे लोग ये भी कहते हैं कि ये राजस्थान की मोनालिसा भी है। ओके, वैसे है तो नहीं, बट इसकी जो बारीकियां हैं, इसकी जो शार्पनेस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, आइज़ की, आईब्रोज़ की, कपड़ों में जो डिज़ाइन है, ये उस वक्त बनाई गई थी, करीब करीब 1700 एडी के वक्त। और सोचिए इसमें इतनी डिटेलिंग्स निकालना एक आर्टिस्ट के लिए कितना कितना मुश्किल वाला काम था, फिर भी उन्होंने ये किया। इस वजह से इसका कंपैरिजन एक पेंटिंग है जो लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई, मोनालिसा पेंटिंग के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। राधा बनी ठनी। Radha Bani Thani is the name of the painting. The artist was Nihal Chand, School, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट। ये सब स्कूल कहाँ का है? राजस्थान का है, किशनगढ़। नाम आप सभी ने सुना होगा, किशनगढ़, हनुमानगढ़, सीकर, श्री गंगानगर, ये आसपास के, उसी के आसपास के जगह की हैं। जयपुर के करीब है ये किशनगढ़। ओके, ये कब बनाया गया था? अराउंड 1760 एडी में। इसका मीडियम भी वही टेम्परा, वाटर कलर ऑन पेपर, कच्ची। अभी ये पेंटिंग जो है नेशनल म्यूज़ियम में है, जो कि न्यू दिल्ली में। एंड व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर? दिस पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन द कोर्ट डांसर ऑफ किंग सावन सिंह ऑफ किशनगढ़ नेम्ड बनी ठनी। देखिए, इस पेंटिंग का नाम क्या है? राधा बनी ठनी। दिस पेंटिंग ये किस पर बनाई गई है? एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी डांसर जो कि सावन सिंह के कोर्ट यानी उनके दरबार में डांस किया करती थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और उन पर ये पेंटिंग जो है रिलेट, उनके साथ ये रिलेट किया जा रहा है पेंटिंग। द किंग वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ राधा एंड कृष्णा। सावन सिंह जी जो थे राधा कृष्णा के बड़े ही भक्त थे। ही गेव द नेम बनी ठनी टू दिस टू हिज कोर्ट डांसर। उन्होंने जो उनके कोर्ट में डांस करने के लिए आती थी, उनका नाम उन्होंने दिया था बनी ठनी। ओके, क्योंकि वो राधा के साथ उसको कंपेयर करने लगे थे। ओके, लेट अस डिस्क्राइब द पेंटिंग। बिफोर दैट वी शुड गो थ्रू द पिक्चर। देखिए, इस पेंटिंग को गौर से देखिए। इसकी आईज़, इसके आईब्रोज़, इसकी चुन्नी, ऑर्नामेंट्स, हाथों में जो लोटस बर्ड्स हैं उसको पकड़ने का तरीका, ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाने की कोशिश की है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ one of the most well-known paintings of Rajasthani art of Kishangarh. Nihal Chand's painting Radha of Kishangarh or Bani Thani, which means well turned out. जो पेंटिंग बनाई गई, एक्चुअली वो पेंटिंग राधा जी को दिमाग में रखते हुए बनाई गई थी, लेकिन ये पेंटिंग कहीं ना कहीं
जो सावन सिंह राजा जी ने इनका नाम बनी ठनी रखा था, क्योंकि वो इसे अपने कोर्ट में डांस करने के लिए जो लेडी आती थी उनके साथ ही कंपेयर करते थे। हर फेस इज elongated with high and sloping forehead. Okay, forehead pointed and long nose and bulging out well cut lips. जो भी मैं यहाँ वर्ड्स पढ़ रहा हूँ फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पिक्चर में। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हर फेस इज़ elongated, ओके, विथ हाई एंड स्लोपिंग फोरहेड। इसकी फोरहेड को देखिए, बहुत ऊंचा बनाया गया है, हल्का सा स्लोप है, स्ट्रेट भी नहीं है। स्लोपिंग फोरहेड, पॉइंटेड एंड लॉन्ग नोज, इसकी नाक भी देखिए, नुकीली तीखी सी नाक बनाई गई है। एंड बल्जिंग आउट वेल कट लिप्स, लिप्स देखिए किस तरीके से बाहर की तरफ हल्की सी उभरी हुई दिख रही है। ओके, एंड पॉइंटेड चिन, चिन भी वैसा ही हल्का सा उभरा हुआ नीचे की तरफ पॉइंटेड शार्प लग रहा है। ओके, हर लॉन्ग ब्लैक ट्रेसेस आर फॉलोइंग डाउन फ्रॉम हर शोल्डर एंड टू हर वेस्ट। पीछे जो जिसकी बात कर रहे हैं ट्रेसेस, दैट इज़ हर हेयर, के बालों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बड़े ही लॉन्ग माने लंबे काले घने, जो कि इनके शोल्डर से होती हुई इनके वेस्ट लाइन तक जा रहे हैं। ओके, कम बैक टू द description. Long black tresses are following down from her shoulders to her waist. Long tapering fingers of her right hand are delicately holding the edge of the transparent ओढ़नी। इसमें आप देखेंगे जो राधा जी ने बड़े ही एकदम सॉफ्टली चुन्नी यानी ओढ़नी को पकड़ा है अपने फिंगर्स के बीच में। लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स ऑफ हर राइट हैंड एंड डेलिकेटली होल्डिंग द एज ऑफ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी। इन हर लेफ्ट हैंड, कि लेफ्ट हैंड को देखिए, इन हर लेफ्ट हैंड there are two lotus buds of pink and white color, which is holding with her delicate fingers. देखिए इसमें भी बड़े प्यार से, बड़े एक खूबसूरती से फिंगर्स को हल्का सा मोड़ते हुए उन्होंने दो लोटस बर्ड्स को पकड़ा है। ओके, डेलिकेट फिंगर्स। ओढ़नी इज डेकोरेटेड विथ गोल्डन मोटिव्स। अब आप इसमें ओढ़नी को देखेंगे जिसमें डिज़ाइन, ये देखें इनके बालों के पास जो ओढ़नी दिख रही है इनमें हल्का हल्का गोल्डन डिज़ाइन जैसा कुछ बना हुआ डिज़ाइन दिख रहा है। ओके, हाँ, हर ड्रेस एंड ज्वेलरीज रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड कॉस्ट्यूम ऑफ द कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयल्टी। इसमें आप देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने कपड़ों को बनाया है, ये एक कहीं ना कहीं राजपूत रॉयल्टी को भी शो करती हैं। शी इज़ वेयरिंग अ वाइट पर्ल नेकलेस। ये देखिए उनके गले में वाइट पर्ल नेकलेस भी दिख रहा है अराउंड हर नेक। द बैकग्राउंड इज़ पेंटेड इन डीप ब्लू कलर। सब आपके सामने है, आप देख सकते हैं जैसा मैं पढ़ रहा हूँ। The background is painted in deep blue color. Lines are very sharp. Lines are very sharp and thin. बहुत ही पतला लाइन्स का यूज़ किया गया है, thin lines का। It is believed that Nihal Chand used
Bunny Thani, the court dancer, as his model for Radha. बनाया उन्होंने राधा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बनी ठनी को, जो बनी ठनी है वो नाम किसने दिया था? राजा यानी किंग सावन सिंह जी ने अपने कोर्ट डांसर को, और उन कोर्ट डांसर को निहाल चंद जी ने एज अ मॉडल के रूप में भी लिया है जब उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। बनाई उन्होंने राधा की है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राधा ब्रैकेट में बनी ठनी। ओके, हर बॉडी इज पेंटेड इन पीच कलर। दिस पेंटिंग, देखिए पीच कलर, दिस पेंटिंग हैज़ beautiful color scheme on the whole painting is very beautiful. So at the last I just want to say you कि ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने, इट मीन्स सुरेश सर ने, मैंने इसे लाइव नेशनल म्यूज़ियम में देखी है, और इनमें से कई पेंटिंग्स जो मैं आपको, जिनके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ या सॉरी समझा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम पेंटिंग्स को मैंने नेशनल म्यूज़ियम में जाकर देखा है खुद, जब मैं कॉलेज में था। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसको आराम से पढ़ना है, समझना है, और लगे आपको कोई डाउट तो प्लीज़ आस्क मी ऑन माय नंबर। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।